કે થઈ ગયું? હા, આવી ગયો રિપોર્ટ, આવી ગયો ચાલુ. ઓકે, અને પેલામાં પણ મૂકી દીધું છે યુટ્યુબ પર પણ. ઓકે, તો આદરણીય ભટ્ટ સાહેબ અને સર્વે આ નિરુક્તમાં વ્યાખ્યાનમાળામાં જોડાયેલા સર્વે મિત્રો, સર્વેનું સ્વાગત છે. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. પ્રજાપતિ રોશનીબેન આપણને એક શ્લોક થી મંગલાચરણ કરશે. રોશનીબેન. હા સર. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. અસ્તુ. હા રોશનીબેન, ધન્યવાદ. તો સેજ તમને ભૂમિકા બાંધી દો. નિરુક્ત આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ છતાં ગુજરાત લેવલે નિરુક્ત જેમણે આપણને સંપાદન કરી છે નિરુક્ત બુકની, પણ આપણને અત્યાર સુધી આપણને ક્યારેય મોકો મળ્યો નથી ભટ્ટ સાહેબના અંડરમાં ભણવાનો. એ લાવો આપણે ઊભો કર્યો છે. અને ખાસ કે ભટ્ટ સાહેબ એમને વ્યાકરણ તો છે, પણ આ વ્યાકરણ એવું છે કે અષ્ટાધ્યાયીથી પરનું વ્યાકરણ છે, કે જેમાં પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ અને અતિ પરોક્ષની વાત છે. પેલામાં તો આપણે પ્રત્યક્ષમાં જ હતા અષ્ટાધ્યાયીમાં, એટલે અતિ પરોક્ષ સુધી તો અષ્ટાધ્યાયીનું કામ નહોતું. પણ એ કાર્ય આપણે વાંચીએ છીએ નિરુક્તમાં ત્યારે ખ્યાલ એટલો બધો નથી આવતો જોઈએ એટલો, પણ અતિ પરોક્ષમાં કેવી રીતે જઈએ છીએ, કારણ કે વ્યાકરણના નિયમો તો લાગુ પડતા જ નથી એમાં. એટલે એ આપણને સરસ સારી રીતે ભટ્ટ સાહેબ આપણને સમજાવશે અને સરસ મોકો આપ્યો છે. તો ભટ્ટ સાહેબનું ખૂબ ખૂબ અહીંયા હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. અને હું આશા રાખું છું આપણે આ બધા જળવાઈ રહીશું આ રીતે. તો 14 અધ્યાય કે 12 અધ્યાય છે નિરુક્તના, જે કઈ છે તે 12 યા 14, એ છેક સુધી જો આપણે ચાલે તો એક વિશ્વ લેવલે આપણો સરસ રેકોર્ડ બની જાય. અને કાયમ માટે આપણે સાચવી રાખીએ આ એક જ્ઞાન જે છે વારસામાં, કે પછી ક્યારેય આપણે આને કાયમ માટે આ સૃષ્ટિ રહે ત્યાં સુધી રહે એવો આપણને આ મોકો મળ્યો છે. અને એ રીતે આપણે કાયમ માટે સોમથી શુક્રવાર સુધી સાચવીશું. અને ભટ્ટ સાહેબનો પરિચય હું ખાસ નહીં આપું, બધા ઓળખીએ છીએ, સરસ ઓળખીએ છીએ, પણ ખરી ઓળખાણ તો હવે આપણને મજા આવશે કે એમના અધ્યાપનમાં સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે. આમ તો અભિજ્ઞાન શાકુંતલ પર હજી એ કાર્ય કરી રહ્યા છે, ભલે કર્યું છે, છેક રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ સુધી મળ્યો છે એ કાર્ય પણ છતાં એ હજી કાર્ય ચાલુ છે. અને મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ ઉપર એમનું મોટું કાર્ય છે, જે આપણે એકડેકથી કક્કો ભણવો પડે છે મેન્યુસ્ક્રિપ્ટમાં, એટલે ફરીથી કક્કો ચાલુ કરવો પડે એવી હાલત છે. પણ છતાં આપણને જે કંઈ મળે છે એ રીતે આપણે સાહેબને ફરીથી આવકારું છું અને તમને બધાનું પણ સ્વાગત કરું છું. તો ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે એમને શરૂઆત કરે. પેલું થઈ જાય એટલે હું તરત જ તમને કહી દઉં છું. ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણના સંસ્કૃત અને ભારતીય સંસ્કૃતિ વિભાગ દ્વારા આયોજિત યાસ્ક પ્રણીત નિરુક્તની આ વ્યાખ્યાનમાળા એના પ્રથમ દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખાસ કરીને સંસ્કૃત વિભાગનો હૃદયથી આભાર માનું છું, ધન્યવાદ, અભિનંદન. કેમ કે આવો કોરોના કાળની અંદર, મહામારીના દિવસોમાં અધ્યયન અધ્યાપનનો યજ્ઞ ચાલુ રાખવો એ મુશ્કેલ છે, પણ આધુનિક સમયમાં જે ટેકનોલોજીએ, ડિજિટલ વર્લ્ડે આપણને સુવિધા પૂરી પાડી છે એનો આ યુનિવર્સિટી ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. અને એના ઉપક્રમે માનનીય રાઠવા સાહેબે આ કાર્યક્રમ ગોઠવ્યો છે. વિશેષ ઔપચારિક વાતમાં ન જતા હવે આપણે નિરુક્તના અધ્યયન તરફ આગળ વધીએ. તો સૌથી પહેલા તો ભારતીય સંસ્કૃતિ, એનો ઇતિહાસ અને કયા સમય બિંદુઓ પર કયા સંજોગોમાં આ ગ્રંથની રચના થઈ છે ત્યાંથી વાત માંડવી પડે. તો ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદી, 6ઠી થી 8મી સદી, એટલે આજથી 2600 કે 2800 વર્ષ પહેલા ભારત દેશમાં અત્યારના પાકિસ્તાનની અંદર શલાતુર નામનું ગામ, રાવલપિંડી પાસેનું, ત્યાં ભગવાન
મહર્ષિ પાણિનીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એમણે અષ્ટાધ્યાયી વ્યાકરણની રચના કરી. અને એ જ સમયે ગોરખપુરથી ઉપર નેપાળ બોર્ડર તરફ જવા માટે જ્યાં ભગવાન બુદ્ધનો કપિલવસ્તુ નામના નગરમાં ભગવાન બુદ્ધનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એ પણ ઈસવીસન પૂર્વે 6ઠી સદી. અને તે સમયે બિહારની અંદર નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય સક્રિય અને પાણીની જ્યાં પ્રાદુર્ભૂત થયા હતા ત્યાં તક્ષશિલા વિશ્વવિદ્યાલય, બે સંસ્કૃતના બહુ મોટા કેન્દ્રો કે જ્યાં વિશ્વભરના વિદ્યાર્થીઓ બહારથી આવતા. અને આ બેની પણ 200 વર્ષ પહેલા કે 100 વર્ષ પહેલા એ યાસ્કે નિરુક્ત નામનું વેદાંગ રચ્યું. આ એ સમયગાળો છે, બુદ્ધની પૂર્વેનો સમયગાળો, પાણિનીની પૂર્વેનો સમયગાળો, કે જ્યારે ઉપનિષદોની રચના પૂરી થઈ ગઈ હતી. 4 વેદ આપણા, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. આ 4 વેદો, એના પછી બ્રાહ્મણો, આરણ્યકો અને ઉપનિષદો. આ ઉપનિષદોની રચના જ્યાં પૂરી થાય છે અને લૌકિક સંસ્કૃત ભાષાનો પણ પ્રારંભ થાય છે, એ સમયગાળામાં પાણિની, યાસ્ક અને ભગવાન બુદ્ધ, આ 3 એ સમયગાળામાં આવે છે. હવે એ સમય એવો ગાળો છે કે જ્યારે વેદ મંત્રોને આધારે ઘણા યજ્ઞ યાગાદી યજ્ઞ સંસ્કૃતિનું પ્રવર્તન બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિએ કરી દીધું હતું. અને એ સમયે આ વેદ મંત્રોના અર્થ છે કે કેમ, અનર્થકા હિ મંત્રાહ એવું કૌત્સ નામના એક આચાર્ય એક મત પણ ઉભો કરી દીધેલો કે મંત્રોનો કોઈ અર્થ નથી. અને એવો જ પ્રતિધ્વનિ જે શ્રમણ સંસ્કૃતિના 2 ધુરંધરો બુદ્ધ અને મહાવીર, એ 2 મહાત્માઓએ પણ વેદોને સ્વીકાર્યા નહીં. એટલે એક સાંસ્કૃતિક સમસ્યા, સાંસ્કૃતિક એક એવો જુવાળ આવીને ઉભો હતો કે આ વેદોનું કયું માનવું કે નહીં, એ મુજબના યજ્ઞ યાગાદી કરવા કે ના કરવા. અને પછી તો વેદના મંત્રો અનર્થક છે એમ કહીને ઉદાહરણ રૂપે કેટલાક શબ્દો પણ ટાંકવા માંડ્યા કે જરફુરી, તરફુરી. તો એવા કેટલાક શબ્દો વેદમાં દેખાડવા માંડ્યા કે આનો શું અર્થ થઈ શકે. હમણાં રાઠવા સાહેબે કીધું એમ અતિ પરોક્ષ વૃત્તિવાળા શબ્દો તરફ આંગળી મૂકીને કેટલાક આચાર્યોએ કીધું કે આ વેદ મંત્રોના આ શબ્દોનો અર્થ કરી બતાવો. એટલે એક પડકારરૂપ, ચુનૌતીરૂપ પરિસ્થિતિ પણ ઊભી થઈ હતી. એક બૌદ્ધિક વ્યાયામ કરવાની જરૂર હતી. ઉપનિષદો પૂરા થયા પછી જે આચાર્યો કેટલાક આયા, જેમણે બુદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો કર્યો, જૈન ધર્મનો ફેલાવો કર્યો અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની બરાબર પ્રતિસ્પર્ધામાં સામે પડકાર રૂપે આ શ્રમણ સંસ્કૃતિના આચાર્યો આવી ગયા. એટલે વેદોને સમજવા માટે, સમજાવવા માટે 6 વેદાંગોની રચના કરવી પડી. અને મહાભાષ્યકાર પતંજલિ, પાણિનીના સૂત્રો ઉપર ભાષ્ય લખનાર પતંજલિ, એમણે તો ત્યાં સુધી બ્રાહ્મણોને કહી દીધું કે બ્રાહ્મણેન નિષ્કારણો ષડંગો અધ્યેયો વેદો જ્ઞેયશ્ચ. જે બ્રાહ્મણ હોય તેણે નિષ્કારણ, કોઈ પણ પ્રયોજન વિના 6 વેદાંગો સહિત વેદનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. ષડંગો, વેદો, અધ્યેયો, જ્ઞેયશ્ચ, એનું અધ્યયન કરવું, મુખપાઠ કરવું અને એને અર્થ સાથે જાણવા સમજવા. અને નિષ્કારણ એવો શબ્દ વાપર્યો. આપણે જાણીએ છીએ પૂર્વ મીમાંસામાં કેટલાક નિત્ય કર્મ છે, કેટલાક કામ્ય કર્મો છે અને કેટલાક નિષિદ્ધ કર્મો છે. તો નિત્ય કર્મ એ છે કે જે કરવાથી પુણ્ય ના મળે પણ ન કરવાથી પાપ અવશ્ય મળે, પ્રાયશ્ચિત જરૂર લાગે. એટલે વેદાધ્યયનને નિત્ય કર્મની કોટીમાં મહાભાષ્યકાર પતંજલિ મૂકે છે. નિષ્કારણેન એ જે શબ્દ વાપર્યો છે એ આ સૂચવી રહ્યો છે
કે નિત્ય કર્મવત વેદનું અને વેદાંગોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. શા માટે આવું શા માટે કરવાનું? તો કહે છે કે ભાઈ વેદની રક્ષા કરશો તો તમને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થશે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એ સકલ પુરુષાર્થોની સિદ્ધિ કરી આપવા માટે વેદ સમર્થ છે. પણ જો વેદનો અર્થ જ તમે નહીં સમજતા હો તો પછી તમારા કલ્યાણનો કોઈ માર્ગ રહેતો નથી. તો આ વેદોને સમજાવવા માટે જે 6 વેદાંગો વિકસાવવામાં આવ્યા, જેમ કે શિક્ષા, કલ્પો, વ્યાકરણમ, નિરુક્તમ, છંદસામ ચિતિઃ, જ્યોતિષામ અયનમ ચક્ષુઃ, જ્યોતિષામ અયનં ચૈવ ષડંગો વેદ ઉચ્યતે. વેદ 6 અંગો વાળો કહેવાયો છે. 6 અંગો કયા કયા? તો શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છંદ અને જ્યોતિષ. આ વેદના અંગ છે એમ કીધું. તો વેદના કયા અંગમાં કયું અંગ રૂપે આ વેદાંગ રહેલું છે? તો એના માટે પાછો બીજો શ્લોક પણ આપણને આપ્યો. છંદઃ પાદૌ તુ વેદસ્ય હસ્તૌ કલ્પોથ પઠ્યતે, જ્યોતિષામ અયનમ ચક્ષુર નિરુક્તમ શ્રોત્રમુચ્યતે, શિક્ષા ઘ્રાણંતુ વેદસ્ય મુખમ વ્યાકરણમ સ્મૃતમ, તસ્માત સાંગમ અધિત્યૈવ બ્રહ્મલોકે મહીયતે. આ છંદ નામનું જે છંદસ, પિંગલ મુનિના જે છંદસ સૂત્રો છે, એ છંદસ સૂત્રો એ વેદ પુરુષના 2 પગ છે. છંદઃ પાદૌ, દ્વિવચન છે પાદૌ. વેદસ્ય પાદૌ, છંદ શાસ્ત્ર એ વેદના ઉભા રહેવા માટે, વેદ પુરુષને ઉભા રહેવા માટેના 2 પગ છે. આપણે જાણીએ છીએ. ભટ્ટ સાહેબ, હા, થઈ ગયું છે, કરી લો. ओके. सर कोई एक मैसेज है कि हिंदी में आप प्रवचन दीजिए करके. હવે એમાં એવું છે કે આપણે ગુજરાતીમાં સિરીઝ એક પૂરી કરીએ એવું મારી વિચારણા છે, પણ પછી ભટ્ટ સાહેબની અનુકૂળતા. મને બંને અનુકૂળ છે. हाँ तो मैसेज आया એટલે मैं जरी बच्चे को मैसेज में ये बात भी ठीक है कि यदि मैं हिंदी में इस विषय की प्रस्तुति करूं तो भविष्य में गुजरात के बाहर भी जो श्रोता वर्ग है, जो अध्यापक है, छात्र हैं, वो उसको ठीक तरह से समझ पाएंगे. तो हम वैसा ही करेंगे. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि महाभाष्यकार पतंजलि ने हमको ये सूचित किया कि ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च. ब्राह्मण यानी जो ज्ञानाकांक्षी है, जो मुमुक्षु है, जो अभ्युदय की आकांक्षा रखने वाला है, वो सब ब्राह्मण है. यहाँ जन्मना जायते वाली बात नहीं है. जो ज्ञान की आकांक्षा रखता है वो ब्राह्मण. जो मुमुक्षु है, मोक्ष की आकांक्षा, चतुर्विध पुरुषार्थ की आकांक्षा रखता है, वो भी ब्राह्मण है. जो अभ्युदय, अपने अभ्युदय की आकांक्षा रखता है, वो भी ब्राह्मण है. ब्रह्मणि चरति इति ब्राह्मणः. ब्रह्म तत्व में जिसका मन संलग्न हुआ है वह ब्राह्मण. तो ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा, यानी संस्कृतानुरागी किसी भी छात्र और अध्यापक के द्वारा 4 वेदों का 6 वेदांगों के साथ अध्ययन करना चाहिए. ये हमको पतंजलि ने कहा है. और जैसे मैंने कहा, निष्कारण शब्द का मतलब क्या है? बिना प्रयोजन. बिना प्रयोजन कैसे कोई पढ़ेगा? तो यहाँ निष्कारण शब्द का अर्थ किया जाता है नित्य कर्मवत. मीमांसा ने, पूर्व मीमांसा ने हमको जो कर्मों के वैविध्य दिखाए, उसमें से कोई नित्य कर्म है, कोई काम्य कर्म है, कोई निषिद्ध कर्म है. तो उनमें से जो नित्य कर्म होते हैं वो करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन नहीं करने से पाप अवश्य मिलता है. जैसे कि हम सुबह में शरीर शुद्धि का कार्य नहीं करेंगे तो हमारा शरीर सड़ जाएगा. तो वो नित्य कर्म है, उसको करना ही करना है. नहीं करने से कोई फायदा नहीं है. नहीं करने से अवश्य हम दुर्गंध से ग्रस्त हो जाएंगे, रोग लग जाएगा चमड़ी के. इसीलिए कुछ नित्य कर्म होते हैं. ऐसे जो भी ज्ञानाकांक्षी व्यक्ति है उसको 4 वेदों का और 6 वेदांगों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए. ये बात हमको कही गई है. तो पढ़ने के लिए जो प्रेरणा, मोटिवेशन देने वाला ये वाक्य है कि क्यों हमें वेदों का और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए.
तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नित्य कर्मवत करना है। और अब ये 6 वेदांगों सहित का वेद पढ़ना है। षडंगो वेद अध्येयो ज्ञेयश्च, अंग सहित हमको उसको पढ़ना है। वृंदा, हेलो, चालू रखियो। मम्मी आपे तने बेटा, હું એક લેક્ચરમાં બેઠો છું। ચેકનો ફોટો કાઢ્યો તો એસી વિશિષ્ટ નંબર કે કાર્ડનો ચેક પર લખેલું છે, તો અહીં બેઝિક કનેક્શન છે એનું। એટલે तो जो 6 वेदांग है वो कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब ये जो वेद पुरुष के 6 अंग गिनाने की बात हम कर रहे थे, तो छंद शास्त्र वेद पुरुष के 2 पांव हैं, और जो कल्प सूत्र होते हैं वो कल्प सूत्र वेद पुरुष के 2 हाथ हैं, और जो ज्योतिष शास्त्र है वो वेद पुरुष के नयन है, नेत्र है। और निरुक्त शास्त्र जो है उसको कान, श्रोत्र, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। ये हमारे काम की चीज है कि आज जब हम निरुक्त की व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं तो उसमें निरुक्त का स्थान कान से जुड़ा हुआ है। कान से क्या करते हैं? हम सुनने की क्रिया करते हैं। तो वेद मंत्रों के अर्थ को यदि हमें सुनना है, समझना है, तो निरुक्त नाम का वेदांग हमें हस्तगत होना चाहिए, निरुक्त का अध्ययन हमें किया होना चाहिए। बिना निरुक्त हम वेद मंत्रों के अर्थ को नहीं सुन पाएंगे। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते का मतलब ये होता है। उसी तरह से जो शिक्षा शास्त्र होते हैं, पाणिनीय शिक्षा इत्यादि, तो वो वेद पुरुष की घ्राण यानी नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख स्थान पर व्याकरण शास्त्र है पाणिनि का। तस्मात् सांगम अधीत्य एव, इसी कारण से अंगों के सहित, षड वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करने के बाद हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बात हमको परंपरागत श्लोकों के द्वारा कही जाती है, लेकिन उसका मर्म हमें ध्यान से समझना है कि ये जो 6 वेदांग हैं उनमें से 2 प्रमुख है, जिसका सीधा संबंध वेदार्थ घटन के साथ जुड़ा हुआ है। वैदिक मंत्रों के अर्थ यदि हमें करना है तो एक हाथ पर हमें व्याकरण शास्त्र होना चाहिए, दूसरे हाथ पर हमारे पास निरुक्त होना चाहिए। निरुक्त और व्याकरण ये दोनों वेदार्थ घटन के साथ सीधे सीधे संलग्न है। बिना व्याकरण, बिना निरुक्त हम वेद को नहीं समझ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दुर्गाचार्य नाम के जो टीकाकार हैं, उन्होंने शब्दों के 3 प्रकार गिनाए हैं। भाषा में प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं, परोक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं, और अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द होते हैं। तो जो प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं, जैसे कि नायक शब्द, हारक, कारक, पाचक, या नेता, दाता, हर्ता, कर्ता, तो जिसको सुनने के साथ तुरंत ही हमको अर्थबोध हो जाता है। क्योंकि नायक है तो नी धातु है, अक प्रत्यय है। नयति स नायकः, जो ले जाता है हमको यहां से वहां, वो हमारा नायक है। नी धातु से त्रुच प्रत्यय लगकर नेत्रु बनेगा। नेता, नेतारो, नेतारः, ऐसे शब्द रूप बनते हैं। तो ले जाने वाला, भाषा में ऐसे कई शब्द ऐसे हैं कि जिसको देखने से, सुनने मात्र से उसका अर्थबोध हो जाता है। लेकिन कुछ परोक्ष वृत्ति वाले शब्द भी हैं, जैसे कि पंकज शब्द, कुशल शब्द ले लीजिए। तो रूढ़ी से हमको उसका सीधा बोध हो जाता है कि पंकज यानी कमल,
कुशल यानी चतुर व्यक्ति, होशियार व्यक्ति। लेकिन 2 मिनट के बाद हमारा ध्यान जाता है कि भाई पंकज में पंक शब्द, पंक है और ज है, जायते क्रियापद से लिया हुआ ज है, तो पंके जायते इति पंकजम अर्थात कमलम। तो प्रथम क्षण में हमको पंकज शब्द का सीधा अर्थ तो रूढ़ी से प्राप्त हो गया कि कमलवाचक शब्द है। लेकिन 2 मिनट के बाद जब दिमाग चलता है, पंके जायते ऐसा विग्रह भी दिखाई पड़ता है, तो ये परोक्ष श्रुति वाला शब्द कहा जाएगा। पहले रूढ़िगत अर्थ मिल जाएगा, दूसरे क्षण में व्याकरण की ओर जब ध्यान जाएगा तो समझ में आएगा कि पंके जायते इति पंकजम अर्थात कमलम। जो पंक में, कीचड़ में पैदा हुआ है वो पंकज। अब देखिए, ये व्याकरण जनित जो अर्थ है, पंख में पैदा हुआ, तो वो तो कोई कीड़ा भी हो सकता है, कोई अन्य वनस्पति भी हो सकती है, क्योंकि पंख में बहुत सारी चीज हो सकती हैं। उन सबको हम पंकज कहते हैं या नहीं कहते हैं वो बात की है। तो अर्थ संकोच की प्रवृत्ति होकर बहुत सारे पदार्थों को, जो जो भी पंख में पैदा होते हैं, उन सबको हम पंकज कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। व्याकरण हमको ये परमिशन देती है, लेकिन रूढ़ी उसको कंट्रोल करते हैं। अर्थ संकोच करके केवल कमल पुष्प के लिए ही पंकज शब्द का प्रयोग होता है। तो ये सारा जो पृष्ठ पेषण मैंने किया वो परोक्ष वृत्ति वाले शब्द के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, गृह शब्द है, गृह्णाति तद गृहम, तो जो ग्रहण करता है, दैट विच टेक्स यू इन, जो आपको घर के अंदर लेता है। आधी रात में भी हम हमारे घर जाते हैं तो घर के द्वार खुलते हैं, वो हमको अंदर ले लेता है। या बाहर से, बाजार से अनेक चीज खरीद कर हम ले आते हैं, सब घर में रखते जाते हैं। तो गृह शब्द वो स्थान है जो सबका ग्रहण करता है, व्यक्तियों का, मेहमानों का, अतिथियों का ग्रहण करता है, चीज वस्तुओं का ग्रहण करता है, वो गृह है। तो ये प्रत्यक्ष वृत्ति वाला शब्द है, कुछ परोक्ष वृत्ति वाले शब्द है। लेकिन एक वेद में दुरोण शब्द भी है। अब ये दुरोण शब्द, दुरोण, उसका अर्थ क्या होगा? वो परोक्ष नहीं, अति परोक्ष वृत्ति वाला शब्द बन गया, जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो अब ये जो अति परोक्ष वृत्ति वाला शब्द है, उसके लिए निरुक्त की आवश्यकता रहेगी। पाणिनि का व्याकरण है वो प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्दों के साथ काम कर रहा है। परोक्ष वृत्ति वाला शब्द के साथ पाणिनि काम करते हैं, लेकिन अंगुली निर्देश मात्र। जैसे कि उणादयो बहुलम ऐसा बोल दिया, या पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम। इस पाणिनि व्याकरण के 1-2 विशेष सूत्र की और मैं अंगुली निर्देश करता हूं, जिसका अभी विवरण नहीं करेंगे। लेकिन पाणिनि ने कुछ परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों के लिए अंगुली निर्देश करके कहा है कि ऐसे शब्दों का आप एक्सप्लेनेशन, उसका विवरण इस ढंग से दे सकते हैं। लेकिन जो अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं, उसके लिए पाणिनि ने अपने हाथ धो दिए हैं। वो ना कहते हैं, पाणिनि ने सभी शब्दों को व्युत्पन्न नहीं माने हैं। पाणिनि ने भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को व्युत्पन्न, जिसका डेरिवेशन हो सकता है, ऐसा नहीं माना है। कतिपय शब्द ऐसे भी पाणिनि कहते हैं कि ऐसा है कि जिसका हम व्युत्पत्ति नहीं दे सकते हैं, उसका ग्रामेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जहां व्याकरण रुक जाता है वहां से निरुक्त शुरू होता है। इसीलिए व्यास ने भी, हम आगे चलकर देखेंगे आगे चलकर कि स्वयं यास्क ने हमको कहा है कि व्याकरणस्य कार्ष्ण्यमिदं निरुक्तम। ये निरुक्त जो है हमारा शास्त्र, वो व्याकरण की संपूर्ति करने वाला है। यानी व्याकरण जहां पर रुक जाएगा, व्याकरण की सीमा जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद यास्क का निरुक्त प्रवर्तित होता है। तो
तो ये व्याकरण की संपूर्ति है। तो इस बात को समझने के लिए भाष्य का आरंभ करने से पहले ही दुर्गाचार्य ने जब निरुक्त पर कमेंट्री लिखना शुरू किया तो वहीं पर बोल दिया कि भाषा में 3 तरह के शब्द हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द, परोक्ष वृत्ति वाले शब्द, और तीसरा है अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द। तो प्रत्यक्ष का तो सीधा सीधा पूरा विवरण पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण से मिल जाएगा। परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों की और पाणिनि केवल अंगुली निर्देश करके निकल जाते हैं, और अति परोक्ष वृत्ति उनका विषय ही नहीं है। तो उनके लिए स्पष्ट रूप से जो कार्यान्वित होता है वो यास्क का निरूपण। भट्ट साहेब, ભટ્ટ સાહેબ માઇક બંધ થયું તમારું. हाँ, तो जहां पर निरुक्त शुरू होता है वो अति परोक्ष वृत्ति वाला व्यापार है, और भाषा में विशेष करके वेद की भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो हम सीधे पाणिनि की मदद से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए निरुक्त की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़कर जो कहना है कि भाई वेद यदि हमने रट लिया, क्योंकि हम लोगों ने जटापाठ, गणपाठ इत्यादि करते हुए वेदों का सस्वर कंठस्थीकरण के काम बहुत शताब्दियों तक किया, लेकिन ऐसे जीवाग्र वेद होने से भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत आदित्य वेदम न विजानाति यो अर्थम। जो व्यक्ति केवल वेद का शब्द स्वरूप ही याद रखता है और अर्थ उसको नहीं जानता है, तो वो भार को ढोने वाले गधे के समान है। स्थाणुरयं भारहार, भार का वहन करने वाला गधा ही है यदि वेद मंत्रों का अर्थ वो नहीं जानता है। वेद मंत्र को रट लेने से भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा यदि हम आत्यंतिक कल्याण चाहते हैं तो हमें अवश्य उनका अर्थ जानना चाहिए, और अर्थ बोध करने के लिए इन सारे वेदांगों की आवश्यकता है। विशेष रूप से यास्क के निरुक्त की हमें आवश्यकता रहती है। अब ये निरुक्त क्या है, इतनी छोटी सी भूमिका करने के बाद हम उस बात पर चले जाते हैं कि निघंटु और निरुक्त क्या चीज है। कोई अज्ञानी व्यक्ति निरुक्त शब्द सुनकर ऐसी भ्रांति में जा सकता है कि जिसमें कुछ कहा ही नहीं गया है वो निरुक्त, निर प्लस उक्त, ऐसा अंडबंड अर्थ भी लोग कर लेते हैं, निरुक्त का अर्थ ही नहीं समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो अनुक्त है वो निरुक्त है, ऐसा नहीं है। निरुक्त का अर्थ अनुक्त ऐसा नहीं है, बल्कि निशेषेण उक्तम इति निरुक्तम। वेद मंत्रों के कठिनतम शब्द, अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों के बारे में जहां सब कुछ कहा गया है, कुछ अवशिष्ट रहा ही नहीं है, कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं है, वो निरुक्त है। निशेषेण उक्तम इति निरुक्तम। निरुक्त के साथ साथ उसका ही पर्यायवाची शब्द है निरुक्ति। निशेषेण उक्ति ही यानी वचनम। इसीलिए निरुक्त के समानार्थक दो और शब्द भी सुन लीजिए। एक है निरुक्तम, दूसरा है निरुक्ति ही, और तीसरा है निर्वचनम।
निशेषेण वचनम इति निर्वचनम। तो वेद के कठिनतम शब्दों के बारे में जहां पर सब कुछ कहा गया है वह निरुक्त, वह निरुक्ति, वह निर्वचन। अब ये स्वतंत्र ग्रंथ है या पराश्रित शब्द है? तो निरुक्त यास्क मुनि ने जो ईसा पूर्व 6ठी या 8वीं शताब्दी में निरुक्त लिखा है, वो निरुक्त एक भाष्य ग्रंथ है, एक वृत्ति है, कमेंट्री है। किस पर कमेंट्री है? तो कहते हैं कि निघंटु नाम का एक वैदिक शब्दों का जो कोश था, उस कोश पर लिखा गया ये भाष्य है निरुक्त। तो निरुक्त का आरंभ करने से पहले हमें निघंटु क्या चीज है वो समझना पड़ेगा। तो वैदिक शब्दों का जो कोश है उसको निघंटु कहते हैं। एकदम सरलतम भाषा में एक वाक्य में मुझे कहना है तो मैं उसको यूं कहूंगा कि वैदिक शब्दों का जो कोश है उसको निघंटु कहते हैं। दुनिया की सबसे पहली, सबसे प्राचीनतम और सबसे पहली कोई डिक्शनरी है, सबसे कोई डिक्शनरी और सबसे पहला कोई थिसॉरस, तो वो निरुक्त पर निघंटु है, जिस पर यास्क ने निरुक्त नाम का भाष्य लिखा है। तो यहां निघंटु में नी प्लस घट धातु, उसका और हम विशेष निर्वचन करने वाले हैं आगे, लेकिन उसका पहले प्राथमिक अर्थ दे देते हैं कि वर्ड्स आर पुट टुगेदर और कंपाइल्ड। जहां पर सभी शब्दों, वैदिक शब्दों को एकत्र करके एक साथ में रखे गए हैं, वो निघंटु है। ऐसा एक ग्रंथ जहां पर वेद के चुने हुए शब्दों को एकत्र करके स्थापित किया है, उसका वहां पाठ किया गया है, वो निघंटु। तो इस निघंटु नाम का जो वैदिक शब्दों का कोश है उसमें कुल मिला के 5 अध्याय है और उनमें शब्द संख्या जो है वो 1771 है, 1771। इतने वैदिक शब्दों का वहां पर संग्रह किया गया है। अब उसमें मैंने जो कहा कि 5 अध्याय आए हुए हैं, वो 5 अध्याय में से पहले 3 जो अध्याय हैं उसको नैघंटुक कांड बोलते हैं। उसमें निघंटु पर से नैघंटुक शब्द बनाया है। 3 अध्यायों से बना, पहला, दूसरा और तीसरा, इन 3 अध्यायों से बना जो कांड है उसको नैघंटुक कांड कहते हैं। उसके अंदर एकार्थक अनेक शब्दों का संग्रह किया गया है। एक ही अर्थ, लेकिन एक अर्थ को कहने वाले अनेक शब्द, यानी एकार्थक अनेक शब्दों का जहां संग्रह है वो नैघंटुक कांड है। पहले 3 अध्यायों में जो शब्द संख्या है वो 1341 शब्द उसमें संग्रहित किए गए हैं। तो एकार्थक अनेक शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्दों का संग्रह। पहले 3 अध्याय में, निघंटु के पहले 3 अध्याय में एकार्थक अनेक शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। जो चौथा अध्याय है, उस चौथे अध्याय को नैगम कांड ऐसा नाम दिया गया है। उस नैगम कांड का एक दूसरा नाम भी दिया गया है निरुक्त में। उसका दूसरा नाम है ऐकपदिक कांड। यहां एक एक पदों का पाठ किया गया है। जो अतिपरोक्ष श्रुति वाले शब्द है, एक शब्द होते हुए भी उसके अनेक अर्थ है, यानी अनेकार्थक एक शब्दों का संग्रह है। अनेक अर्थ वाले एक एक शब्दों का जहां संग्रह है, इसीलिए वो समझने में कठिन है। तो अनेकार्थक एक शब्दों का जहां संग्रह है उसको नैगम कांड कहते हैं अथवा ऐकपदिक कांड कहते हैं। इस चौथे अध्याय में कुल मिला के 279 शब्दों का संग्रह किया गया है। और निघंटु का जो 5वां अध्याय है, वो 5वें अध्याय में कुल मिला के 6 पाद हैं, सब सेक्शन 6 हैं। उस 5वें अध्याय को दैवत कांड बोलते हैं और उसमें कुल मिला के 151 शब्दों का संग्रह किया गया है। अब ये तीनों को आप मिला लेंगे
1341, 279, 151, तो टोटल हो जाएगा 1771। ये कुल मिला के निघंटु में आए हुए शब्दों का संग्रह है, जिस पर यास्क भाष्य लिखने वाले हैं। उस भाष्य का नाम है निरुक्त, और निरुक्त शब्द का अर्थ होता है निशेषेण उक्तम इति निरुक्तम। निघंटु के शब्दों को ले लेकर, उसको चुन चुन कर उस शब्द के बारे में सब कुछ वहां कहा गया है। सब कुछ का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो तो करने वाला है। अब ये जो नैघंटुक कांड है, जिसमें मैंने कहा कि एकार्थक अनेक शब्द हैं, तो कुछ सैंपल भी आपको सुनना चाहिए। ग्रंथ हाथ में लेकर भी पूरा पढ़ लेना, लेकिन हम थोड़ा आपको आचमन करा देते हैं। जैसे कि जब कहते हैं कि एकार्थक अनेक शब्द है, तो वो कौन है? जैसे कि गौहु, गुमा, जुमा, क्ष्मा,क्षा, क्षमा, क्षौणी, क्षीतिहि, अवनिहि, उर्वी, पृथ्वी, मही, रिपः, अदितिहि, ईड़ा, निर्वृतिहि, भूहु, भूमिहि, पूषा, गातुः, गोत्रा इति एकविंशति पृथ्वी नामधेयानि। जैसे ही निघंटु का प्रथम अध्याय हम खोलते हैं, उसका पाठ शुरू करते हैं, तो उसमें ऐसे अलग अलग शब्द दिए हैं, जैसे कि गौहु, गुमा, जुमा, क्षमा, क्षमा इत्यादि जो मैंने अभी कहा। और इन 21 शब्दों का पाठ कर देने के बाद सबको कंपाइल करके एकत्र करके एक स्थान में रख दिए। उसके बाद वहां पर लिखा गया है इति एकविंशति ही पृथ्वी नामधेयानि। ये सारे के सारे 21 नाम, नामधेय यानी नाम, ये सारे 21 नाम वो पृथ्वी के वाचक है। पृथ्वी ऐसा एक कॉमन अर्थ है, तो समानार्थक ये अनेक शब्द है, वहां पर्यायवाची शब्दों का संग्रह है। जैसे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, है हेम, चंद्रम, रुक्मम, अयः, हिरण्यम, पेशः, कृशनम, लोहम, कनकम, कांचनम, भर्म, अमृतम, मरुत, दत्रम, जातरूपम इति पंचदश हिरण्य नामानि। ये 15 सुवर्ण के वाचक नाम है। तो वेदों में इनमें से बहुत सारे शब्द का प्रयोग हमको दिखाई पड़ेगा। तो हम हमारे परिचय में तो हिरण्य शब्द है, स्वर्ण है, सुवर्ण है, लेकिन ये भर्म आ जाएगा बीच में तो कैसे समझेंगे हम? दत्रम आ जाएगा तो कैसे समझेंगे? जात रूपम आएगा, कृष्णम शब्द आ जाएगा, अरे लोहम शब्द भी आ जाएगा। लोह का अर्थ तो हम लोहा ही करते हैं, लेकिन वेद में उसका अर्थ सुवर्ण होता है, ये बात भी कही गई है। तो वो जब तक हम निघंटु नहीं देखेंगे और निघंटु पर का व्याख्यान नहीं सुनेंगे, निरुक्त को नहीं देखेंगे, तब हम ये नहीं समझ पाएंगे कि लोह शब्द का अर्थ भी सुवर्ण भी हो सकता है। अभी वर्तमान जगत में लौकिक भाषा में लोह का अर्थ तो लोखंडी ही होता है, लोहा ही होता है, लेकिन वेद में यदि ये शब्द कहीं आपको देखने में आ जाए तो वहां उसका अर्थ स्वर्ण हो जाता है। तो बिना निरुक्त पढ़े हम वेद को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे, उसकी ओर ये बात सूचित कर रही है हमको। अब ये जो दूसरा नैगम कांड है, जहां अनेकार्थक एक एक शब्द है, प्रत्येक शब्द के अनेक अर्थ मिलेंगे, मल्टीपल मीनिंग वाले शब्दों का वहां संग्रह है। चौथे अध्याय में, निघंटु के चौथे अध्याय में, जिसको ऐकपदिक कांड भी कहा है, उसमें ऐसे शब्द है जैसे कि जहा, निधा, शिताम, मेहना, दमुनाह, मुषह, इशिरेण, कुरूतन, जठरे, तीतौ, शिप्रे, मध्या, मंदु, इर्मांतासह, कायमानः, लोधम, शिरम, विदद्रे, द्रुपदे इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं कि उनमें से अनेक अर्थ प्रस्फुटित होते हैं। तो कौन से मंत्र में इस शब्द का क्या अर्थ लेना है, वही शब्द जब दूसरे मंत्र में आता है तो वहां दूसरा अर्थ दे रहा है। तीसरे मंत्र में यदि शब्द आए तो कोई तीसरा अर्थ भी दे सकता है। यानी कुछ चैलेंजिंग परिस्थिति, चुनौती देने वाली परिस्थिति खड़ी करने वाले ये सारे शब्द हैं। जब किसी एक शब्द का अनेक अर्थ होता है
तो कौन से मंत्र में, कहाँ पर, कौन से पूर्वापर संदर्भ में, विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या अर्थ लेना है, वो बिना निरुक्त पढ़े हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो पहले आरंभ में राठवा साहब ने हमको बताया कि अतिपरोक्ष श्रुति वाले शब्दों के क्षेत्र में पाणिनि के सूत्र व्यवहृत नहीं होते हैं, प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो जहां पाणिनि की सीमा खत्म हो जाती है वहां निरुक्त शुरू करता है, इसीलिए निरुक्त को व्याकरण की संपूर्ति बोला है। अब रहा निघंटु का 5वां अध्याय। सबसे पहले निघंटु को समझना है हमें कि उसमें 5 अध्याय है। पहले 3 अध्याय का नाम है नैघंटुक कांड, चौथे अध्याय का नाम है नैगम कांड, और जो 5वां अध्याय है वो है दैवत कांड। देवता संबंधी नामों का संग्रह वहां किया गया है, जैसे कि अग्नि, जातवेदाः, वैश्वानरः इति 3 पदानि। अग्नि के 3 नाम वेद में प्रोमिनेंट है, प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अग्नि, जातवेदाः और वैश्वानरः। उसी तरह से वायुः, वरुणः, रुद्रः, इंद्रः, पर्जन्यः, बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, क्षेत्रस्य पतिः, वास्तोष्पतिः, वाचस्पतिः, अपाम्नपात्, यमः, मित्रः, कः, सरस्वान्, विश्वकर्मा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो 5वां अध्याय निघंटु का ऐसा है। तो वेद मंत्रों में देवताओं की स्तुति है, तो देवतावाचक शब्दों का भी वहां संग्रह किया गया है। देवताओं के नामों को उठा उठाकर वहां एकत्र किए हैं। देवता की स्तुति हम तब कर पाएंगे जब देवता वाचक शब्द का अर्थ पहले समझ लेंगे। यदि आदित्य शब्द को हम नहीं समझेंगे, आदित्य सूर्य का वाचक है ये जानते हैं, लेकिन आदित्य सूर्य शब्द का प्रयोग न करके ऋषि ने आदित्य शब्द का क्यों प्रयोग किया? आदित्य भी छोड़ दिया कहीं पर, सूर्य भी छोड़ दिया कहीं पर, पूषण शब्द का प्रयोग किया। तो पूषण शब्द का प्रयोग करने का मतलब क्या होता है? यानी देवतावाचक शब्द भी अपने आप में कोई एक विशेष अर्थ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वेद मंत्रों का जब अर्थ करेंगे तो आदित्य का अर्थ सूर्य करेंगे और सूर्य का अर्थ भी सूर्य करेंगे और पूषण का अर्थ भी सूर्य कर देंगे। नो, इट इज नॉट सो। अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ छाया है, शेड ऑफ मीनिंग्स आर डिफरेंट। प्रत्येक शब्द अपने आप में कुछ विभिन्न अर्थ दे रहा है। तो ऋषि मुनियों ने जब सूर्य शब्द अवेलेबल था उसको छोड़कर पूषण शब्द का प्रयोग किया या आदित्य शब्द का प्रयोग किया, तो उसके पीछे क्या रहस्य है ये बिना निरुक्त पढ़े हम नहीं समझ पाएंगे। आदित्य शब्द भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक शब्द है समुद्र, तो समुद्र शब्द मान लीजिए है, तो समुद्र का अर्थ तो प्रचलित अर्थ है, सब जानते हैं, दरियावाचक शब्द है। लेकिन ये जो दरियावाचक शब्द है वो वेद में जब प्रयुक्त होता है समुद्र, तो कहीं पर वो पार्थिव समुद्र का वाचक भी है और अंतरिक्ष लोक का भी वाचक है। आप कहेंगे कैसे? समुद्र शब्द का अर्थ अंतरिक्ष होता है? हाँ, वेद में समुद्र शब्द का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है। कैसे होता है? तो कहते हैं कि समुद्र शब्द को ध्यान से देखिए, सम प्लस उद प्लस द्रव धातु है। समुद्रवंती अस्माद स्थानाद आपः। समुद्र एक ऐसा स्थान है जहां से पानी गिरता है। समुद्र शब्द में द्रव धातु यास्क दिखाने वाले हैं हमको भविष्य में कि द्रवती यानी वहां से पानी का क्षरण होता है, ऊपर से वर्षा के रूप में जलबिंदु नीचे आते हैं पृथ्वी तल पर। तो सबसे पहला समुद्र तो एक अंतरिक्ष में रहा है, इसीलिए समुद्र पद का अर्थ अंतरिक्ष होता है। और अर्थ ऐसा होने का कारण यह है कि वो सम उपसर्ग और उद उपसर्ग के बाद द्रव है। समुद्रवंती अस्माद स्थानाद आपः इति समुद्रः, जहां से पानी नीचे गिरता है वो समुद्र है, यानी अंतरिक्ष। तो वेद में ऐसे इतने सारे विचित्र शब्द हैं कि हम यदि केवल रूढ़ अर्थ
हमारी सीमित मर्यादा में जो परिचय में आए हुए शब्द का अर्थ है उतना ही अर्थ लेंगे तो हम वेद मंत्र को ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे। यदि वेद मंत्र को ठीक तरह से समझना है तो निरुक्त की सहायता लेनी ही होगी, तब जाकर समझ में आएगा कि फलाने फलाने मंत्र में समुद्र शब्द दरिया का वाचक नहीं है बल्कि अंतरिक्ष का वाचक है। तो इस तरह से हमें देखना है। आदित्य शब्द लीजिए, मान लीजिए कि तो यास को उसको समझाते हैं, उसका निश्शेषेण वचनम, निश्शेषेण उक्ति ही करते हैं, निर्वचन करते हैं। क्या करते हैं? तो कहते हैं कि आदत्ते रसान यदि आदित्य, आदित्य वो पदार्थ है जो पृथ्वी के जल का शोषण कर लेता है, यानी सूर्य, सूर्य की किरण तेज धूप होती है तो जलाशय सूख जाता है। तो जलाशय को सुखाने वाला आदत्ते रसान इति आदित्य, तो दा प्लस उपसर्ग, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु ग्रहण करना, आदान करना, उस अर्थ को व्यक्त करता है। तो सूर्य आदित्य एक ऐसा पदार्थ है कि जो पृथ्वी के जल को ले लेता है, आदान करता है, ग्रहण कर लेता है, शोषण कर लेता है, वो आदित्य है। लेकिन कुत्रचित, अब देखिए, सूर्य के लिए वेद मंत्रों में आदित्य शब्द का प्रयोग किया होगा तो वो ठीक बैठ जाएगा कि आदित्य यानी सूर्य जो जल का शोषण करता है। लेकिन कुत्रचित वरुण देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए भी आदित्य शब्द का प्रयोग मिलेगा आपको वेद में। तो क्या करेंगे? सूर्य ऐसा अर्थ वहां ठीक नहीं बैठेगा। वरुण के लिए यदि आदित्य शब्द रखा गया है या इंद्र के लिए आदित्य शब्द रखा गया है तो बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ये वरुण का ये विशेषण कैसे हो पाएगा? तब निरुक्त आपको सहाय करेगा। निरुक्त बताएगा आपको कि यहाँ पर आदित्य शब्द का जो निर्वचन हमें करना है वो इस ढंग से करना है। अदिते पुत्राः इति आदित्याः, जो अदिति के पुत्र होते हैं वो आदित्य कहलाते हैं। सभी देवताओं की माता का नाम अदिति है, तो अदिति के पुत्र को आदित्य कहते हैं। इस अर्थ में आदित्य शब्द वरुण के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। अदिति के पुत्र के अर्थ में ये शब्द इंद्र के लिए भी जचता है। तो बिना निरुक्त पढ़े, बिना निर्वचन जाने हम वेद मंत्रों में जब ये शब्द का प्रयोग होगा, दैवत कांड में आए हुए शब्द का प्रयोग होगा, तो उसका सही सही विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अर्थ बिठाने की जब कोशिश करेंगे तो निरुक्त हमें बड़ी सहायता करेगा। आप ऋग्वेद पर जो सायणाचार्य का भाष्य है उस सायण भाष्य को देख लीजिए। तो सायण ने अनेक स्थान पर इति निरुक्तम इति यास्कः, तो यास्क को बार बार वो कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं और दिखाते हैं कि मैं जो अर्थ कर रहा हूं उसके पीछे मेरे पास यास्क का ये वचन आधार रूप है। यास्क के आधार पर मैं इस वेद मंत्र के इस शब्द का ये अर्थ दे रहा हूं आपको। तो सायणाचार्य भी अपने किए हुए भाष्य की ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता दिखाने के लिए यास्क को बार बार उद्धृत करते हैं कि ऐसा निरुक्त में कहा है, ऐसा यास्क ने कहा है। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे कि ये जो निघंटु है जिसमें 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय को 3 कांड में विभक्त किए हैं और तीनों कांडों में 3 तरह के शब्दों का संग्रह किया गया है और उस पर अब यास्क एक एक लेकर उस पर अपना भाष्य लिखने वाले हैं, उस पर अपना निर्वचन करने वाले हैं। निशेषेण वचनम, प्रत्येक शब्द को इतनी सारी गहराई के साथ इतने विस्तार के साथ वो बताने वाले हैं कि कुछ बाकी कहने का रहेगा ही नहीं। निशेषेण वचनम, निशेषेण यानी जिसमें कहने का कुछ अवशिष्ट रहेगा ही नहीं, ऐसा वो व्याख्यान करने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो निरुक्त नाम का वेदांग, जिसको निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते कहा है, वेद मंत्रों के अर्थ सुनने के लिए निरुक्त होना चाहिए। निरुक्त रूपी कान, निरुक्त समान कर्ण यदि हमारे पास नहीं है
तो हम ठीक तरह से वेद मंत्रों के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अब एक बिंदु बाकी रह जाता है निघंटु के साथ, वो है इस निघंटु के रचयिता कौन थे। तो परंपरा से ऐसा हमको बताया जाता है कि निघंटु की रचना कश्यप प्रजापति ने की थी। एक दूसरा अभिप्राय है कि यास्क ने स्वयं की थी उसकी रचना, और एक तीसरा अभिप्राय ये भी है कि अनेक पूर्वाचार्यों ने अलग अलग वेदों में से शब्दों को एकत्र करके इस निघंटु को बनाया है। यानी ये मल्टी ऑथरशिप वाला ग्रंथ है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, अनेकों ने मिलकर उसमें शब्दों को डाल डालकर एक बक्सा तैयार किया है। निघंटु नाम का जो बॉक्स है, जो कोश है, जो कोश ग्रंथ है, उसमें अनेक आचार्यों ने अपनी ओर से अनेक नए नए शब्द जोड़ दिए हैं। तो इस रूप में भी ये बोला जाता है, तीन तरह के विकल्प, तीन तरह का विवाद हमारे पास है। परंपरा कहती है कि कश्यप प्रजापति ने बनाया। एक अभिप्राय में अभी उसका प्रयोजन कारण भी बताता हूं कि स्वयं यास्क ने उसकी रचना की होगी, और तीसरा अभिप्राय है अनेक लोगों ने मिलकर उसकी रचना की है। तो निरुक्त के 7वें अध्याय में एक प्रसंग आने वाला है जहां यास्क बीच में कहते हैं कि तानी अपि केचन समामनन्ति नाहम समामने। जो देवताओं के विशेषणवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि इंद्र है, तो इंद्र के अन्य विशेषण है मघवा, वृत्रहंता, वज्रहस्त, वज्रबाहु। एक इंद्र के लिए अनेक विशेषण है, वज्रबाहु है, मघवा है। तो निघंटु में कैसे शब्द का संग्रह किया जाता है, तो कहते हैं कि मूल देवता का नाम ही हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन कोई ऐसे निघंटुकार भी होते हैं, हुए हैं, कि जिन्होंने देवताओं के विशेषणों का पाठ भी इस कोश ग्रंथ में कर दिया है। यानी भूतकाल में, अतीत में अनेक प्रकार के निघंटु थे। कोई निघंटु ऐसा था जिसमें केवल देवताओं के नाम ही दिए थे, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा निघंटु ऐसा भी था कि जिसमें देवताओं के विशेषणों का, पराक्रमवाचक, गुणवाचक शब्दों का भी संग्रह वहां किया गया था। तानी अपि एके समामनन्ति, ऐसे ऐसे नामों, तानी विशेषणानि अपि एके आचार्याः समामनन्ति। समामनन्ति यानी संग्रह करते हैं, लेकिन ना हम समामने, यास्क कैसे, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए, वर्तमान में केवल एक ही निघंटु मिलता है, लेकिन ये जो डिबेट चल रही है, यास्क ने ही स्वयं उसको उद्धृत की है 7वें अध्याय में, दैवत कांड का आरंभ जब करते हैं वहां पर, तो उससे ही ऐसा सूचित होता है कि यास्क के समय में तो एकाधिक निरुक्त रहे होंगे। तो एकाधिक निरुक्त जो रहे होंगे, जिसके कारण अनेक सारे निघंटु रहे होंगे। लेकिन हमारे पास आज एक ही निघंटु है और एक ही निरुक्त है। यदि एक से अधिक निघंटु होंगे तो उन सब पर अलग अलग भाष्य रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए वर्तमान काल में एक ही निघंटु है, और उसी पर यास्क का जो निरुक्त है वो एक ही निरुक्त वेदांग है। इसीलिए इसको हम वेद का अंग मानेंगे। यास्क का जो है वो, भविष्य में मान लीजिए कि कोई नया मिल जाए, तब उसका स्वरूप अंतरंग की परीक्षा करके कोई दूसरा निर्णय हम दे सकेंगे। लेकिन वर्तमान में तो हमारे लिए एक ही निघंटु है। अब वो निरुक्तकार यास्क ने ही बनाया हुआ है या अन्य का है, वो कहना मुश्किल है। तथापि एक मत मेरा है कि वर्तमान में जो निघंटु मिलता है वो अनेक लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है, वो यास्क प्रणीत नहीं लगता है, क्योंकि यास्क की प्रतिज्ञा के विरुद्ध उसमें है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, अग्नि ही जात वेदा वैश्वानर, तो अग्नि ये मूल देवता का नाम है, लेकिन जात वेदा और वैश्वानर दो विशेषण है। तो वर्तमान में जो निघंटु मिलता है उसमें देवतावाचक नाम भी है और विशेषणवाचक शब्दों का भी संग्रह है। इससे सूचित होता है कि यास्क की 7वें अध्याय की जो प्रतिज्ञा है उससे विरुद्ध जाने वाला ये स्टेटमेंट है, निघंटु का संग्रह है। इसीलिए वर्तमान में जो निघंटु मिलता है वो यास्क प्रणीत नहीं है, बल्कि
अनेक पूर्वाचार्यों ने मिलकर बनाया हुआ वो संग्रह है, जिस पर वो निरुक्त नाम का भाष्य लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम आज की हमारी इस व्याख्यान माला का पहला व्याख्यान पूर्ण करते हैं, और कल से हम ये सावधानी रखेंगे कि कोई बीच में डिस्टरबेंस न हो जाए। आज जो डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सबका पुनः स्वागत है। कल से हम एकदम नियमित रूप से इस क्रिया को, पठन पाठन की बात को आगे चलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। નમસ્કાર. સર્વેનો આભાર, ભટ્ટ સાહેબનો પણ આભાર. અને આપણે લાંબી યાત્રામાં છીએ. આજે પહેલો મણકો શરૂઆત કર્યો છે, એટલે સમયસર પાછા આપણે આવી જઈશું આવતીકાલે 4 વાગે પણ 10 મિનિટ પહેલા જોડાઈ જઈશું, એટલે વચ્ચે ડિસ્ટર્બ ના થાય. અને હવે સાહેબને કોહોસ્ટ પણ બનાવવાનો ખ્યાલ આવી ગયો છે, એટલે બનાવી દઈશું. અને ઘણા બધા અધ્યાપક મિત્રો પણ અહીંયા હાજર છે, મોલિયા સાહેબ છે રાજકોટથી, એટલે આ રીતે આપણે સળંગ સાચવીશું અને સરસ મજા આવશે. તો શાંતિ મંત્રથી આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ. ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સંતુ નિરામયાઃ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. તો મળીએ કાલે પાછા 4 વાગે. ત્યાં સુધી આપણે વિરામ લઈએ. ઓકે. મૂલ્ય સાહેબ નમસ્કાર. નમસ્કાર સાહેબ, મારો ક્લાસ પર જોડાણો છે. ક્લાસના અચ્છા. સાંભળી ગયા સારું. સ્ક્રીન ઉપર જ. અચ્છા, આજે થોડુંક ડિસ્ટર્બન્સ થયું, પણ કાલથી ન થાય એનું ધ્યાન રાખીશું આપણે. હા, ઓકે સર, ઓકે. ઓકે, ગુડ બાય.